Hello everyone, today welcome to the radiology classes. Today we will be discussing MCQs on the coronary angiography topic. Coronary angiography is one of the important topic for the radiographer exams and also for the DRT and the BRT exams. So without wasting further time, let's start the MCQs. Question number 1. What is coronary angiography primarily used for? कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रोसीजर जो होता है उसे प्राइमरीली किसके लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट, इवेल्युएटिंग पल्मोनरी आर्टरीज, बी, डायग्नोसिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, थर्ड, असेसिंग लीवर फंक्शन एंड फोर्थ, डायग्नोसिंग सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स. So the answer of this question is diagnosing coronary artery disease. Coronary angiography procedure is performed to evaluate the coronary artery disease. Different coronary artery disease like atherosclerosis, myocardial ischemia, arteriovenous malformations, AVF. For all these conditions, arrhythmia is the contraindication of the coronary angiography. So for diagnosing the coronary artery disease, coronary angiography procedure is performed. Question number 2. Which of the following arteries is most commonly used for catheter insertion in coronary angiography? कौन सी आर्टरीज को कॉमनली यूज किया जाता है कैथेटर इंसर्शन के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी में? ब्रैकियल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी. फॉर द कोरोनरी एंजियोग्राफी कैथेटर इंसर्शन मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टरी इज द femoral artery, but at some places it is given that radial artery is the commonly used catheter insertion site in the recent time. So the answer of this question is femoral artery. Question number 3. During coronary angiography, the contrast medium is injected into which of the following vessels? कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान कॉन्ट्रास्ट मीडियम को कौन सी वेसल्स में इंजेक्ट किया जाता है? कोरोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वीन्स, अयोटा और इंफीरियर वीना केवा. ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रोसीजर, द प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड फॉर द कोरोनरी वेसल्स ऑफ द हार्ट and the contrast medium is injected into the coronary arteries. Coronary arteries of the heart arises from the aortic sinus of the ascending aorta and it is divided into two parts, right coronary arteries and the left coronary arteries. So the answer of this question is coronary arteries. Question number 4. What is the primary imaging modality used during coronary angiography? कोरोनरी एंजियोग्राफी के प्रोसीजर के दौरान कौन सी प्राइमरी इमेजिंग मॉडलिटी है जिसको यूज किया जाता है? अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, एक्सरे फ्लोरोस्कोपी और सीटी स्कैन. ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी द प्राइमरी इमेजिंग मॉडलिटी यूज्ड इज एक्सरे फ्लोरोस्कोपी. Fluoroscopy is used for the dynamic imaging during the coronary angiography for taking the imaging of live imaging of the contrast filled coronary vessels. Question number 5. Which contrast agent is commonly used in coronary angiography? कौन सा contrast agent commonly यूज किया जाता है coronary angiography के लिए? बेरियम सल्फेट, आयोडीनेटेड contrast, गैडोलिनियम और एयर. The contrast agent which is commonly used for coronary angiography is iodinated contrast. Iodinated contrast is commonly used for coronary angiography and the amount is 30 to 100 ml. Usual amount is 30 to 100 ml for the coronary angiography. Question number 6. What is the major complication associated with coronary angiography? Myocardial infarction, kidney failure, bleeding at the puncture site and all of the above. The major complication which is associated with coronary angiography is myocardial infarction also, kidney failure also and bleeding at the puncture site. So the answer of this question is all of the above. What is myocardial infarction? Myocardial infarction is commonly known as the heart attack. Myocardial infarction को हम commonly क्या बोलते हैं? Heart attack बोलते हैं. And it occurs when blood flow to a part of the heart के किसी भी पार्ट में जो ब्लड का फ्लो है जब वो स्टॉप हो जाता है
तो it leads to the death of the heart muscles, and this condition is known as the myocardial ischemia. Question number 7th. Which condition is contraindication for coronary angiography? History of allergic reactions to iodinated contrast agents, stable coronary artery disease without symptoms, mild renal sufficiency एंड हाइपरटेंशन. इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए? जो प्राइमरी कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है फॉर द कोरोनरी एंजियोग्राफी इज एलर्जी टू द iodinated contrast agent. If the person is having an allergy to the iodinated contrast agent, then the coronary angiography cannot be performed on that person. क्योंकि अगर हम iodinated contrast agent उस person को दे देंगे तो उसके एलर्जिक रिएक्शंस अकर हो जाएगी, इसलिए उसके कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म नहीं की जाएगी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस टू आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following medications is commonly discontinued before coronary angiography? कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करने से पहले कौन सी मेडिकेशंस है जिनको कॉमनली डिसकंटिन्यू किया जाता है, यानी स्टॉप किया जाता है? पेशेंट को बोला जाता है कि आपको ये मेडिसिन को कंज्यूम नहीं करना. 5 से 6 दिन पहले से पेशेंट को ये बोल दिया जाता है. एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन, एटोरवेस्टेटिन एंड क्लोपिडोग्रेल. एस्पिरिन इज मेनली used as an analgesic or antipyretic. Metformin is given for the diabetes patient, diabetes mellitus patient को metformin दिया जाता है. Atorvastatin is given to the patient to lower the cholesterol level. कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए और हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एटोरवेस्टेटिन दिया जाता है पेशेंट्स को. एंड the last option clopidogrel. Clopidogrel is a antiplatelet medicine. Antiplatelet medication है clopidogrel. So the medication which is commonly discontinued before the coronary angiography procedure is metformin, which is given to the diabetes mellitus patients. Question number 9. What is the primary goal of coronary angiography इन पेशेंट्स विद अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम? जिन पेशेंट्स को अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है उनके अंदर प्राइमरी गोल क्या होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करने का? कन्फर्मिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, असेसिंग एक्सटेंट एंड सीवियरिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, इवेल्युएटिंग हार्ट वॉल्व इन फंक्शन और मेजरिंग इजेक्शन फ्रैक्शन. जो प्राइमरी गोल होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रोसीजर करने का अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पेशेंट्स में, वो होता है असेस करना कि पेशेंट के अंदर कितना कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस हो रखा है. स्टेनोसिस यानी कि जो वेसल है उसके अंदर, वो जो वेसल है उसके अंदर कितना ब्लॉकेज हो रखा है, कितना ब्लॉकेज हो रखा है वेसल के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम पेशेंट्स के अंदर कोरोनरी एंजियोग्राफी को. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज असेसिंग द एक्सटेंट एंड सीवियरिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस. Question number 10th. What is the preferred patient position during coronary angiography? कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान प्रीफर्ड पेशेंट पोजीशन क्या होती है? सुपाइन, प्रोन, लेटरल डेक्यूबिटस और ट्रेंडेलेनबर्ग. सुपाइन पोजीशन जो नॉर्मली लाइंग पोजीशन होती है उसको हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं. प्रोन पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइज ऑन हिज स्टमक इज द प्रोन पोजीशन. ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन इज द पोजीशन इन विच द पेशेंट्स head is down and feet are above the feet. This position is वो पोजीशन जिसके अंदर पेशेंट का जो हेड होता है वो फीट के बिलो होता है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन. ये जो पोजीशन है क्या होगी? ये ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन होगी. सो दी कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान जो प्रीफर्ड पेशेंट पोजीशन होती है वो होती है सुपाइन पोजीशन. Question number 11. Which of the following conditions can be identified using coronary angiography? कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रोसीजर से हम कौन सी कंडीशंस को असेस कर सकते हैं? कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, एट्रियल फिब्रिलेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड पेरिकार्डाइटिस.
जो कंडीशन है जो हम कोरोनरी एंजियोग्राफी से असेस कर सकते हैं वो होगी कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस. So the answer of this question is coronary artery stenosis. Pulmonary embolism can be best detected by the CT angiography. कंप्यूटर टोमोएंजियोग्राफी से हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को बेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम प्रॉम्प्टिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी? मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है जिससे कि जो कि सिग्नल होता है, प्रॉम्प्टिंग यानी कि सिग्नल होता है या सिग्नल होता है जो कि हमें बताता है कि एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है. ऐसा कौन सा सिम्टम है जो कि हमें सिग्नल देता है, हमें ये बताता है कि कोरोनरी एंजियोग्राफी की रिक्वायरमेंट है? हेडेक, चेस्ट पेन और एंजाइना, डिस्पनिया और फीवर. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेस्ट पेन, एंजाइना. डिस्पनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. ब्रीथिंग में जो डिफिकल्टी होती है उसको हम बोलते हैं डिस्पनिया. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोटेंशियल रिस्क ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी? इनमें से कौन सा कोरोनरी एंजियोग्राफी का पोटेंशियल रिस्क नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है? स्ट्रोक, इन्फेक्शन, विजन लॉस और कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी. तो जो विजन लॉस है इज नॉट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी. स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है जब ब्रेन के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाए या फिर इंटरप्ट हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो जो ब्रेन का पार्ट, ब्रेन के किसी भी पार्ट का जो टिश्यू है वो डैमेज होने लग जाता है, उसकी डेथ होने लग जाती है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोक. स्ट्रोक occurs when blood flow to a part of the brain is interrupted or reduced. और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन की जो सेल होती है वो डैमेज हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है. What is contrast induced nephropathy? Contrast induced nephropathy is a form of acute kidney. It is a form of acute kidney injury and it occurs due to the iodinated contrast media. जो iodinated contrast media का यूज होता है प्रोसीजर में, उसकी वजह से contrast induced nephropathy अकर होता है. और इसके अंदर जो किडनी का फंक्शन होता है वो टेम्परेरीली डिक्लाइन हो जाता है for 24 to 48 hours and during this the serum creatinine level also reduces but it is reversible. usually ये reversible condition होती है and it is back to normal in within 7 to 10 days. So this is contrast induced nephropathy and the answer of this question is vision loss. Next question number 14. What is the purpose of heparin administration during coronary angiography? कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान हिपैरिन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पर्पस होता है? हिपैरिन को क्यों एडमिनिस्टर किया जाता है? पेन को रिड्यूस करने के लिए, टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, एनहेंस कॉन्ट्रास्ट विजुअलाइजेशन, कॉन्ट्रास्ट विजुअलाइजेशन को एनहेंस करने के लिए, और लोअर हार्ट रेट को लो करने के लिए. टू लोअर द हार्ट रेट बीटा मेडिकेशंस, बीटा ब्लॉकर्स आर यूज. हार्ट रेट को रिड्यूस करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है. पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक्स, एस्पिरिन, इन सब का यूज़ किया जाता है. जो हिपैरिन एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी वो होता है ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए. ड्यूरिंग द कोरोनरी एंजियोग्राफी कैथेटर्स होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्लड वेसल में ताकि हम कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस कर सके टू द कोरोनरी एंजियोग्राफी वेसल्स. सो जो कैथेटर है उसके अंदर क्लॉट्स का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए हर थोड़े टाइम के अंदर हिपैरिन को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो क्लोट है, थ्रोम्बस है, उसका फॉर्मेशन ना हो. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रिवेंट ब्लड क्लोट फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन इन्वेसिव अल्टरनेटिव टू कोरोनरी एंजियोग्राफी? नॉन इन्वेसिव अल्टरनेटिव क्या होगा कोरोनरी एंजियोग्राफी का? सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एमआरआई ऑफ द हार्ट. तो जो बेस्ट नॉन इन्वेसिव अल्टरनेटिव होगा कोरोनरी एंजियोग्राफी का वो होगा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द की फीचर ऑफ फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व असेसमेंट ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. की फीचर क्या होता है फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व का ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी? सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व असेसमेंट का मतलब क्या होता है. ये जो FFR टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है? FFR का मीनिंग है ये स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक है. ये क्या स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टेक्निक है
It is a specialized diagnostic technique. It is used in coronary angiography. coronary angiography के दौरान FFR का यूज़ किया जाता है. अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है जो कोरोनरी स्टेनोसिस होता है उसकी सीवियरिटी को इवेलुएट करने के लिए फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व का यूज़ किया जाता है. ये डिटरमाइन करता है कि इट डिटरमाइंस इफ इट इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ये डिटरमाइन करता है कि कोरोनरी स्टेनोसिस से कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो कॉज नहीं हो रहा. मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या है? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल. इसको मेजर करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रेशर वायर को इंट्रोड्यूस किया जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर. स्पेशल प्रेशर वायर्स को यूज किया जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर. एंड देन उसके बाद वैसोडाइलेटर्स का यूज किया जाता है. वैसोडाइलेटर लाइक एडिनोसिन को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो ब्लड का फ्लो है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके. ब्लड के फ्लो को मैक्सिमाइज करने के लिए वैसोडाइलेटर दिए जाते हैं जैसे कि एडिनोसिन. और फिर उसके बाद जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको मेजर किया जाता है. और प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जाता है जहाँ पे वेसल के अंदर स्टेनोसिस प्रेजेंट है, जहाँ पे वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो ऑक्लूड हो रखा है, स्टेनोसिस हो रखा है, वहाँ पे इसको मेजर किया जाता है. स्टेनोसिस का मतलब होता है जो नॉर्मल वेसल होती है वो नॉर्मली इस तरीके से होती है, और जब स्टेनोसिस होगा तो वेसल जो है वो इस तरीके से होगी. ये नॉर्मल थी और ये बीच में से इस तरीके से वेसल जो है इस तरीके से ब्लड फ्लो को ऑक्लूड करेगी. तो ये जो है स्टेनोसिस होता है. तो जो FFR है वो डिटरमाइन करता है सीवियरिटी ऑफ द कोरोनरी स्टेनोसिस, और इसके लिए वो मेज़र करता है प्रेशर डिफरेंस को स्टेनोसिस की जगह पे. और कैसे मेज़र करता है? वैसोडाइलेटर्स को दिया जाता है. वैसोडाइलेटर जैसे कि एडिनोसिन कहाँ पे दिया जाता है? जहाँ पे स्टेनोसिस हो रखा है. प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए अक्रॉस द स्टेनोसिस, और जो प्रेशर डिफरेंस है वो मेज़र किया जाता है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है FFR इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व इज इक्वल्स टू डिस्टल कोरोनरी प्रेशर अपॉन प्रॉक्सिमल आयोटिक प्रेशर. डिस्टल कोरोनरी प्रेशर अपॉन प्रॉक्सिमल आयोटिक प्रेशर, ये होता है FFR को मेज़र करने का फॉर्मूला. अगर FFR की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.80 है तो FFR जो है वो नॉर्मल है. अगर FFR की वैल्यू लेस देन 0.80 है देन FFR इज एबनॉर्मल. इस तरीके से असेस किया जाता है सीवियरिटी ऑफ कोरोनरी स्टेनोसिस को. तो FFR जो है फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द कोरोनरी स्टेनोसिस यूजिंग द फॉर्मूला FFR इज इक्वल्स टू डिस्टल कोरोनरी प्रेशर अपॉन प्रॉक्सिमल आयोटिक प्रेशर. और अगर FFR की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8 है देन इट इज़ नॉर्मल, और अगर FFR की वैल्यू लेस देन 0.8 है देन इट इज़ एबनॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कोरोनरी एंजियोग्राफी? मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन की आफ्टर कोरोनरी एंजियोग्राफी? रिस्ट रेडियल एक्सिस, ग्रोइन फीमोरल एक्सिस, नेक और एब्डोमेन. So the answer of this question is groin femoral axis. Question number 18. What should be monitored immediately after coronary angiography? Coronary angiography के तुरंत बाद क्या मॉनिटर करना चाहिए? लिवर एंजाइम्स, ब्लड प्रेशर एंड पंक्चर साइट, हीमोग्लोबिन एंड द ब्लड ग्लूकोज. As coronary angiography procedure is related to the vessels and puncture is done for the catheterization, so the immediately monitored शुड बी दी ब्लड प्रेशर एंड दी पंक्चर साइट. तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद हमें तुरंत ब्लड प्रेशर और पंक्चर साइट को मेजर करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. विच कोरोनरी आर्टरी इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द विडो मेकर व्हेन सीवियरली ब्लॉक्ड? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी, दीज बोथ आर दी डिविजन्स ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसके दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. पोस्ट डिसेंडिंग आर्टरी इज द डिवीजन ऑफ द राइट कोरोनल आर्टरी. राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो मेनली दो में डिवाइड होती है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड द मार्जिनल आर्टरी. एंड द कोरोनरी आर्टरी विच इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द विडो मेकर इज द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी.
लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को विडो मेकर इसलिए बोला जाता है बिकॉज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर मोस्टली एथेरोस्क्लेरोसिस अकर्स एंड स्टेनोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम अकर्स इन द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. That's why it is known as the widowmaker. This is also the important question. Question number 20. How long should patient typically avoid strenuous activities after coronary angiography via radial axis? अगर रेडियल एक्सिस से कोरोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म किया गया है तो पेशेंट को कितने टाइम तक स्ट्रेनस भारी भरकम एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए? 24 आवर, 3 to 5 days, 1 week और 10 days. So the answer of this question is 3 to 5 days. This is the image of the coronary angiography. This is the left coronary artery. This is the right coronary artery, which are further divided into the marginal artery and the right marginal artery and the right anterior descending artery, and the left coronary artery is also further dividing. So this is the image of the coronary angiography. Next question number 21. What is the typical duration of coronary angiography procedure? Typical duration क्या होता है coronary angiography procedure का? 15 to 30 minute, 1 to 2 hours, 3 to 4 hour और over 5 hours. तो जो typical duration होता है coronary angiography का वो होता है 1 to 2 hours. Question number 22. Which of the following is the most common access route for coronary angiography recent practices? Recent practices में most common access route क्या है coronary angiography का? Brachial artery, femoral artery, radial artery और the axillary artery. तो जो recent practices में जो common access route है coronary angiography का वो है radial artery. Question number 23. What is the pre-procedural test commonly performed to assess renal function before coronary angiography? कौन से pre-procedural test है जो कि commonly perform किया जाता है renal function को assess करने के लिए coronary angiography से पहले? सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट पैनल. तो जो रिनल फंक्शन के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो होता है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट. रिनल फंक्शन के लिए सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और सीरम क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल लेवल है वो होना चाहिए 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. सीरम क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल लेवल है वो होना चाहिए 0.2 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी? कौन से प्रोसीजर है जिसको इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग कोरोनरी एंजियोग्राफी? कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर हमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होती है कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान? सीवियर कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, हाइपरटेंशन, माइल्ड अनीमिया और एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल. सीवियर कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस के केस में हमें इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत होती है ड्यूरिंग द कोरोनरी एंजियोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ गाइड वायर इन कोरोनरी एंजियोग्राफी? प्राइमरी पर्पस क्या होता है गाइड वायर को यूज करने का कोरोनरी एंजियोग्राफी में? टू इंजेक्ट कॉन्ट्रास्ट डाई, टू विजुअलाइज कोरोनरी आर्टरीज, टू पोजिशन द कैथेटर प्रिसाइजली, टू मेजर ब्लड प्रेशर. तो जो प्राइमरी पर्पस होता है गाइड वायर को यूज करने का ड्यूरिंग द कोरोनरी एंजियोग्राफी वो होता है कैथेटर को प्रिसाइजली प्लेस करना, पोजीशन करना. कैथेटराइजेशन के लिए जो कोरोनरी एंजियोग्राफी में टेक्निक यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं सेल्डिंगर टेक्निक. सेल्डिंगर टेक्निक का यूज किया जाता है. सेल्डिंगर टेक्निक होती है जिसके अंदर सबसे पहले वेसल के अंदर हम डालते हैं निडल को. निडल के थ्रू जो गाइड वायर होता है उसको प्लेस किया जाता है. गाइड वायर को प्लेस किया जाएगा. निडल के थ्रू गाइड वायर को प्लेस किया जाएगा. पहले हमने निडल को प्लेस किया, फिर निडल के थ्रू हम गाइड वायर को प्लेस करेंगे एंड देन उसके बाद थ्रू दी गाइड वायर के थ्रू हम कैथेटर को प्लेस करेंगे. ये गाइड वायर है, ये कैथेटर है. देन आफ्टर व्हेन द कैथेटर इज प्लेस, जब हमने कैथेटर को प्लेस कर दिया उसके बाद ये जो गाइड वायर है उसको हम रिमूव कर लेंगे, गाइड वायर को रिमूव कर लेंगे और फिर कैथेटर के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं. इसी टेक्निक को हम बोलते हैं सेल्डिंगर टेक्निक. और सेल्डिंगर टेक्निक का यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग दी कोरोनरी एंजियोग्राफी फॉर दी
catheterization. Question number 26. Coronary angiography is often followed by which therapeutic procedure if severe blockages are found? अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान हमें सीवियर ब्लॉकेजेस मिलते हैं तो कौन सी थेरापेटिक टेक्निक प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है? पेसमेकर इम्प्लांटेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी. तो जो थेरापेटिक प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान ब्लॉकेजेस मिलते हैं तो वो प्रोसीजर होता है हमारा परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. व्हाट इज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन? परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन को हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी एंजियोप्लास्टी. कोरोनरी एंजियोप्लास्टी. इन दिस प्रोसीजर कैथेट जहाँ पे स्टेनोसिस प्रेजेंट होता है, वेसल के अंदर ब्लॉकेज प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हम कैथेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं हैविंग द बलून एट इट टिप्स. इस बलून को जो है इस जगह तक लेके जाया जाता है जहाँ पे स्टेनोसिस है. फिर यहाँ पे बलून को प्लेस करने के बाद आई विल एक्सप्लेन इट हियर. यहाँ पे हमने जब हम इस बलून को प्लेस कर देंगे इस जगह पे जहाँ पे ब्लॉकेज है, फिर इस बलून को फुलाया जाता है. ये जो बलून है इसको फुलाया जाएगा यहाँ पे इस बलून को. और ये जो बलून है ये जो प्लेग जमा हो रखा है यहाँ पे इसको साइड्स में कलेक्ट कर देगा और जो वेसल ऑक्यूल्यूट हो रखी थी, ब्लॉक्ड हो रखी थी, उसको ओपन कर देगा. ब्लड का जो फ्लो है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा. और रिक्वायरमेंट होगी तो हम यहाँ पे स्टेंट को भी प्लेस कर सकते हैं. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी. ये होता है परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी के अंदर, जिसको हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं. कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जो है ये एक कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि सीवियर कोरोनरी जो डिजीज होती है, सीवियर कोरोनरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है. और कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग जब परफॉर्म की जाएगी जब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है, तब हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग को परफॉर्म करते हैं. और इसके अंदर जो वेसल ब्लॉक्ड है उसकी जगह पे फिर जो दूसरी वेसल होती है उसको ग्राफ्ट किया जाता है, लाइक सेफेनियस और दूसरी वेसल को ग्राफ्ट किया जाएगा यहाँ पे. वहाँ से उसको रिमूव करके यहाँ हार्ट के अंदर प्लेस किया जाएगा ताकि ब्लड फ्लो जो है वो फिर से नॉर्मल हो सके. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Question number 27. Which of the following is a common procedural medication given before coronary angiography? कोरोनरी एंजियोग्राफी से कौन सी मेडिकेशन दी जाती है प्रोसीजर के पहले? कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रोसीजर के पहले इंसुलिन क्या होती है? पेनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है. बीटा सेल्स जो होती है पेनक्रियाज की वो सीक्रेट करती है इंसुलिन को, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है. बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं क्लास होती है मेडिकेशंस की, एक क्लास है जो कि जो एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन जो होते हैं उसके इफेक्ट को ये रिड्यूस करने का काम करता है हार्ट के और ब्लड वेसल्स के अंदर. और जो ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं. बीपी जो होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं बीटा ब्लॉकर्स जो है ये MRI CT इन प्रोसेसर्स के दौरान यूज़ किया जाता है सो दैट कि जो मोशन आर्टिफैक्ट है वो हमें देखने को ना मिले. देन उसके बाद है एंटीकोआगुलेंट्स एंड एंटीहिस्टामिन्स. तो प्री प्रोसीजर मेडिकेशन जो दी जाती है बिफोर द कोरोनरी एंजियोग्राफी वो होगी एंटीहिस्टामिन इसलिए दिए जाते हैं ताकि प्रोसीजर के दौरान आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो रिएक्शन है वो ना हो. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंटीहिस्टामिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. हाउ डज कोरोनरी एंजियोग्राफी हेल्प इन इवेल्युएटिंग हार्ट डिजीज? कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे हेल्प करता है हार्ट डिजीज को इवेल्युएट करने में? by identifying arrhythmias, by visualizing coronary artery blockages, by measuring ejection fraction, by assessing heart valve function.
तो जो इवेल्युएट करने में हेल्प करता है कोरोनरी एंजियोग्राफी, वो हेल्प करता है बाय विजुअलाइजिंग कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी इन पेशेंट्स अंडरगोइंग प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन फॉर नॉन कार्डियक सर्जरी। मेन पर्पस क्या होता है कोरोनरी एंजियोग्राफी का उन पेशेंट्स में जो इनका प्री ऑपरेटिव इवेल्यूशन किया जा रहा है फॉर नॉन कार्डियक सर्जरी। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर कार्डियक सर्जरी नहीं है, कार्डियक के अलावा दूसरे पार्ट की सर्जरी है, उनके अंदर प्री ऑपरेटिव इवेल्यूशन के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी क्यों परफॉर्म की जाती है? टू कन्फर्म कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, टू इवेल्युएट रिस्क ऑफ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी, इवेल्युएट करने के लिए कि सर्जरी के दौरान कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ना हो, टू असेस हार्ट लंग फंक्शन or to determine the blood sugar levels. So the answer of this question is to evaluate the risk of cardiac complications. सर्जरी के दौरान कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क को इवेल्युएट करने के लिए प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन किया जाता है कोरोनरी एंजियोग्राफी का यूज करके फॉर द नॉन कार्डियक सर्जरी पेशेंट, फॉर नॉन कार्डियक सर्जरी। क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी? इनमें से कौन सा रेयर है लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है कोरोनरी एंजियोग्राफी का? कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरकैलेमिया एंड लीवर फेलियर। दिस इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन। कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन जो है वो रेयर है बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है कोरोनरी एंजियोग्राफी का। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई thank you for watching the video. If you like the video, press this like button, and if you want more videos to watch like this, subscribe the channel. The name of this channel is the Radiology Room. You can subscribe the channel the Radiology Room, and you can share with your friends for more videos. Already I have uploaded videos on some topics like the catheter, guide wire, angiography, IVP, MCQs on the IVP, and I have also uploaded a video in which 100 plus MCQs I have discussed, 100 plus very important MCQs for the upcoming exams like the RBB, RRB, KGMU and all. Thank you for watching.